تھا میرا سوال. اب مجھے لگتا ہے کہ آپ اچھے سے اس کا جواب دیں گے. اچھا رحیل صاحب یہ بتائیں کہ جب وہ چلے گئے چلے گئے نے ملک صاحب. یار سوال نے تو کرن دے جب اپنی واری یقین ماندا تو کر لگا. مینوں اج سوال آیا سی. مینوں انہیں کامل اطاعت دے بارے جڑا انہیں بکواس کیتی نا مرزا نے مولا علی علیہ السلام دے اوتے. اچھا یار یہ نیچے لکھ دیجئے پازیٹیو لائف لکھ دیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ ریسٹرکشن ڈالا ہے انہوں نے، پتہ نہیں۔ اچھا بھائی میں جی ہو السلام گیا علیکم. پھر کہ ملک عمران اور نجف باس اور علی ترے میرا دل کن پھڑ لو. یار یہ لکھ دو گڈی نیچے پڑھتے نیچے دیکھو کیا عامر لکھ رہا بھائی ہے یہ لوگ۔ پازیٹیو ملک لائف. عمران تے نجے بہتا کرتے رہے میں گھٹ ہی بولیا. میں عامر بھائی او بھائی کوئی نیچے لکھ دے پازیٹیو پازیٹیو لائف لکھ لائف دے۔ پازیٹیو لائف پازیٹیو لائف. تو انہیں علی 29 منٹ پڑھ او لائے یار عامر بھائی تے نو ٹائم جڑے دے دیو. 29 منٹ او عامر بھائی نو ٹائم دے دیو. تینے کن پھڑ لو. ایڈے نلائق تانوں کنی باری ہزار باری میں دس یار یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ آپ لوگ نیچے پازیٹیو لائف کیوں لکھو نہیں یار لکھ رہے ہو؟ پازیٹیو لائف نہیں لکھن تو آ رہی ہو سارے لکھ دو پازیٹیو لائف نیچے. بات یہ ہے کہ میں نے یہ درجنوں مرتبہ بات بیان کی ہے لیکن حدیث میں تو آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حج بیت اللہ کی طواف کرتے دیکھا ان کو۔ ہاں حدیث میں آتا ہے جو مسیح ہے اس کو نبی علیہ السلام نے طواف کعبہ کرتا ہے دیکھا، بلکہ وہ تو خواب میں دیکھا. آپ نے قولی حدیث میں قول ہوتا ہے جو نبی پاک کا ارشاد ہو، جو بات ہو حدیث. آپ نے جی فرمایا کہ مسیح وہ کون سی گھاٹی ہے وہاں سے احرام باندھیں گے جب حج کے لیے جائیں گے. اس گھاٹی کا نام ہے، ابھی میرے ذہن سے گھوم گیا یار، وہ مکہ سے تھوڑے فاصلے پر ہے، کچھ دور ہے. وہاں سے وہ احرام باندھیں گے جب وہ جائیں گے حج کے لیے، تو وہاں وہ احرام باندھیں گے اور وہاں پھر جا کر طواف کعبہ کریں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے. تو یہ تو ہے ہی نہیں، وہ یہ تو بناوٹی اور جعلی سارا ہے نا، یہ کوئی مسیح تھوڑی ہے. بارہ تو یعنی کہ اس کا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ مرزا صاحب اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں گیا حج؟ نیور یہ عجیب بات ہے۔ بھائی کبھی بھی نہیں گئے. اچھا 2 سوال میں نے اخلاق کے بتا دیے، تیسرا سوال میں بتانے لگا ہوں. یہ تینوں سوال میں نے پوچھنے ہیں آپ تینوں سے، تو جس کو نہ آئے اس کو پھر آج کان پکڑا کے مارنا ہے. میں بزی تھا، وہ گاڑی کی نا کوئی پرابلم تھی، وہ مجھے بیٹری کی تاریں اتروانی پڑی، ساتھ پاس کھڑے ہونا پڑا. وہ ویلڈنگ کرنے کے لیے بڑی گاڑی ہے تو وہ اس کو کرنا پڑتا ہے، اتارنا پڑتا ہے. جی جی وہ ویلڈنگ کرنی تھی اس نے کوئی چیز، تو وہ کہہ رہا تھا مسئلہ. تو ایسا آپ نے میں نے سنا آوازوں میں کہ ایسا آپ نے جو حدیث سے اس کا اخلاق ثابت کرو. حدیث بھائی کون سی حدیث میں اس کا ذکر ہے؟ کون سی حدیث سے اس کا اخلاق ثابت؟ اس کی زندگی سے اس کا اخلاق ثابت کرو. اس کی زندگی کا واقعہ سناؤ کوئی، کس طرح کا اس کا اخلاق، اس کی زندگی سے پوچھو. میرا اخلاق میری زندگی سے یہاں ہوگا نا، میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوں کہ برا ہوں، اپنے دوستوں میں اچھا ہوں یا برا ہوں، اپنے گاؤں میں اچھا ہوں یا برا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹوں کے ساتھ اچھا ہوں یا برا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہوں یا برا ہوں. وہاں سے پتہ چلے گا کہ حدیث میں ذکر آیا میرا. تیسرا اور آخری سوال نوٹ کر لیں، پہلے 2 سوال نوٹ کر لیے، میں پوچھنے ہیں یہ تینوں سوال. تیسرا سوال یہ ہے کہ اس نے اپنا باغ، اپنا گارڈن وہ گروی رکھا. گروی سمجھتے ہیں؟ گروی رکھا اپنی دوسری بیوی کے آگے. گروی کیا ہوتا سمیر بھائی؟ رینٹ رہن رکھا. اس کا کیا مطلب، کیسے رکھا جاتا ہے رہن؟ رینٹ کرائے پہ دیا ہے نا؟ نہیں وہ رینٹ ہوتا ہے، یہ موڑ گئے کرائے والا تو رینٹ پہ ہوتا ہے. یہ موڑ گئے موڑ گئے. جس طرح آپ بینک سے پیسے لیتے ہیں تو گھر کے ڈاکومنٹس رکھتے ہیں، یہ وہ صاحب ہے. جب آپ گاڑی لینی ہو یا کچھ اور ضمانت کے طور پر گارنٹی کے طور پر رکھوایا. ہاں ضمانت کے طور پر نا، ضمانت کے طور پر. ٹھیک ہے، ضمانت کے طور پر اپنا باغ، اپنا گارڈن سمجھتے ہیں نا؟
जी जी वो अपनी दूसरी बीवी नुसरत जहां बेगम के आगे क्यों रखा? चलो भाई मुझे तुम 5,000 रुपया दे दो तो ये गार्डन तुम्हारा। अगर मैं 30 सालों में 30 ईयर्स में अगर मैंने ये पैसे तुम्हें वापस कर दिए तो गार्डन मेरा हो जाएगा, वरना ये तुम्हारा ही है। मुझे 5,000 रुपया चाहिए। क्यों रखा? अपनी बीवी से 5,000 रुपया कोई लेता है बाग उसके आगे रहन रखने के लिए? बीवी का सारा माल तो आपका और आपका सारा माल आपकी बीवी का। अपनी बीवी के आगे गार्डन रहन रख दिया, गिरवी रख दिया और उससे 5,000 रुपया लिया। था पूछो 5,000 रुपया लिया था। वो किस लिए? हाँ, ये सवाल पूछो किस लिए लिया था और क्यों ये ड्रामा किया था। मैं आपको बता देता हूँ वजह क्या थी। वो मिर्जाई बताएगा नहीं आपको। वजह ये सारे सुन रहे आपको, सारे मिर्जाई नीचे बैठे। वजह ये थी कि वो जो गार्डन था ना, वो इसका सोर्स ऑफ इनकम था, सोर्स ऑफ इनकम। तो अब वो जो बेटे थे ना दो पहली बीवी से, उनको पहली बीवी के जो दो बेटे थे जवान थे, एक का नाम फजल था, एक का नाम सुल्तान था, उनको ये देना नहीं चाहता था वो इनकम, और जो बाद वाली बीवी थी उनके बच्चों को देना चाहता था। तो पहली, वैसे तो अब जो इसका बेटा है नेचुरली उसका वो विरासत है, उसकी वो बाप की जो प्रॉपर्टी है उसको तो मिलेगा ही ना कल इसके मरने के बाद। अब इसने क्या किया कि अपनी दूसरी बीवी के आगे बाग को गिरवी रख दिया कि अब मेरे मरने के बाद क्या होगा, बाग इनका हो जाएगा, जो पहली बीवी के दो लड़के हैं वो फारिग हो जाएंगे, उनको तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उनको तो तब मिल सकता है जब ये मेरी मलकियत हो। मैं अपनी मलकियत से निकाल कर गार्डन को अपनी दूसरी बीवी के आगे रख दूं तो नतीजा उसका क्या होगा, मेरे मरने के बाद जो मेरी दूसरी बीवी है वो मालकन होगी और उसके बच्चे मालकन होंगे उसके। समझ गए? पहली बीवी के जो बच्चे हैं वो तो फारग हो जाएंगे ना, उनको तो वो मिलेगा जो मेरे नाम प्रॉपर्टी है। जो मैंने अपनी प्रॉपर्टी दूसरी बीवी के नाम कर दी या दूसरी बीवी के बच्चों को दे दी, वो तो नहीं मिलेगी ना पहले बीवी के बच्चों को। तो ये एक फ्रॉड था, ये एक धोखा था जो इसने किया अपने पहली बीवी के बच्चों को अपनी जायदाद से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी सोर्स ऑफ इनकम से अलग करने के लिए, काटने के लिए। लेकिन ये मिर्जाई आपको बताएगा नहीं बात। ये ज़रूरतुल इमाम उसकी किताब है, नोट कर लें, रूहानी खज़ाइन की जिल्द 13 या 14 में पड़ी हुई है। उसके आखिर पर बाग गिरवी रखने का वहाँ लिखा हुआ है, और सीरतुल महदी में भी लिखा हुआ है 30 सालों के लिए बाग उसके आगे रहन रखा था। 5,000 रुपये लिए थे, 4,000 के जेवरात लिए थे, 1,000 नकद कैश। 1,000 की कैश कहाँ से आई, 4,000 के जेवरात कहाँ से? उसके पास तो थे ही नहीं, वो तो सारा इसी ने दिया था बना के उसको। वो तो जब दिल्ली से ब्याह कर आई थी तो उसके पास तो था ही कुछ नहीं। तो ये कैसे ये 5,000 का ड्रामा किया, एक फेक डॉक्यूमेंट तैयार किया, जैली रजिस्ट्री, जैली स्टाम्प पेपर, उस जमाने में भी होता था स्टाम्प पेपर लेकर उस पर लिख दिया कि आज के बाद ये बाग मेरी दूसरी बीवी का है, बदले में मैंने 5,000 रुपये लिए हैं, 30 सालों में अगर मैं इससे वापस लेना चाहूँ तो ले लूँगा, वरना ये बाग इसी का हो जाएगा। ना किसी ने लिया ना उनको मिला, वो पहली बीवी के बच्चे फारग हो गए, उनको उनका हक इनको खिला दिया। ये इसका इखलाक था अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ और अपने मुआशरे में। ये इस बंदे का इखलाक, इसको कहते हैं इखलाक। हदीस में से कौन सा इखलाक दिखाना है? ये बात है। उसका इखलाक उसकी जिंदगी में से मिलेगा ना, उसकी लाइफ में से मिलेगा ना भाई, अपने घर से मिलेगा ना। अपने बच्चों में कैसा था, अपनी बीवी के साथ कैसा था। पहली बीवी से मुबाशरत तर्क कर दी, बाप के पैसे चुराकर, बाप की पेंशन चुराकर सियालकोट गया, वहां 4 साल वापस ही नहीं आया, क्योंकि घर से पैसे लेकर भाग गया था। 4 साल 1864 से लेकर 1868, 1864 से लेकर 1868 तक, 4 साल तक। कितनी साफ बातें मैंने बयान कर दी। किसी का इखलाक उसका पूछना है तो ये उस पर सवाल है कि भाई आपके मिर्जा जी का जो इखलाक है, जालिमो ये कहते हो कि ये नबी पाक का इखलाक किस तरह का था, ये इखलाक ये कहते हो ये नबी पाक का ज़िल बरूज है। ये बातें जो इसमें पाई जाती हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपनी
बीवियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी औलाद के लिए, पता है कितने शफीक थे? पता है, खातून जन्नत आती, नबी पाक उठकर खड़े हो जाते, मेरी बेटी आ गई है। अपनी बीवियों से पता है कितना प्यार था, कितनी मुसावात रखते थे, बारी बारी, आज मैंने इसके घर सोना है, कल उसके घर, परसों उसके घर, ज्यादती नहीं करनी किसी के साथ, जितना जिसका हक है सबको बराबर तकसीम किया हुआ है। जो माले गनीमत में से 5वां हिस्सा नबी का रखा गया था, अल्लाह ताला का और अल्लाह के नबी का रखा गया, वो क्या था? नबी के घर का गुजारा उनसे होता था। फिर कई बेवाएं उनका गुजारा भी उसी से होता था, उसी माल से होता था। कई बेवाओं के, यतीमों के, ये समझ लें कि नान नफके के आप जुम्मेदार थे। नान नफका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाया करता था। कई बेवाएं जो जिनके शोहर जंगों में शहीद हो गए, 2 बेवाओं से आपने सिर्फ इसीलिए शादी की, वो बेवा हो गई, उनकी मदद के लिए कि भाई ये अब कहाँ जाएं। यतीमों का, बच्चों का, गुलामों का, सब का आइडियल बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलाम थे जो उनके जैद बिन हारसा, उनको नबी पाक ने बेटा बना के रखा हुआ था। लोग उनको कहते ही जैद बिन मोहम्मद थे, पता है आपको, वो गुलाम थे। नबी पाक ने उनकी शादी अपनी कजन के साथ की, अपनी कजन फुफोजाद ज़ैनब के साथ, सईदा ज़ैनब के साथ। वो गुजारा ना हुआ, तलाक हो गई। नबी पाक ने जब उनके साथ शादी की कि भाई इसको तलाक इसने दे दी है, घर में गुजारा नहीं होता था, लड़ाई झगड़े होते थे, नबी पाक मना करते थे ना लड़ा करो, लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान शैतान लड़ाइयाँ करवाता है ना, लड़ाई ख़त्म नहीं होती थी, तो बिल आखिर तलाक हो गई। जब नबी पाक ने उनसे शादी की सईदा ज़ैनब से, तो लोगों ने कहा भाई ये तो आपका बेटा था। वो नबी पाक का ऐसे बेटा, यानी मुंह बोला बेटा, ऐसा लोग कहते ही उनको जैद बिन मोहम्मद थे। कभी गुलाम को इतना प्यार किसी ने दिया है? मिर्जा कादियानी के गुलाम या नौकर, जो उसके घर में कोई काम करने वाली औरत, पता है उसके साथ क्या सलूक करता था? क्या करता था? कौन बार बार माइक, हाँ क्या करता था वो? एक औरत जो इसके घर में सफाई करती थी और इसकी नौकरानी थी, सर्दियों में उसने गर्म पानी लोटे में रखा वजू करने के लिए या इस्तिंजा करने के लिए। वो पानी अब चूल्हे पर गर्म करते हैं ना, किसी बर्तन में रखकर गर्म किया, वो पानी ज्यादा गर्म हो गया। उसने, औरत ने महसूस ना किया कि भाई पानी ज्यादा गर्म है, इसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हाथ जल जाएंगे। उसने गलती कर दी, पानी गर्म ही रख दिया उसमें। इसने जब उसको इस्तेमाल किया तो इसको लगा कि ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। अब ये जुबानी भी तो कह सकता था ना कि देखो तुमने पानी जो दिया वो ज्यादा गर्म था। इसने पता क्या किया, इसने उसको बुलाया, कहता इधर आओ मेरी बात सुनो, हाथ आगे करो। उसने हाथ आगे किया, इसने वो गर्म पानी उसके हाथों पर फेंक दिया। जब उसके हाथ जले ना, वो रोई चीखी, फिर इसने कहा ये गर्म पानी तुमने मुझे दिया था। नबी अलैहिस्सलाम के पास सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु छोटे बच्चे थे, 10 साल के बच्चे थे, छोटे बच्चे। 10 साल तक नबी पाक की खिदमत करते थे। वजू के लिए पानी लेकर आते थे, जाए नमाज उठाकर लाते थे, जूते उठाकर लाते थे, घर कोई काम भी हो जाओ किसी को बुला के, सैयदना अबू बकर को बुला के लाओ, सैयदना उमर को बुला के लाओ, जो भी काम होता था छोटा मोटा हजरत अनस करते थे। खुद हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के पास मैंने 10 साल उनकी खिदमत की है, एक दफा भी नहीं डांटा। 10 सालों में एक दफा भी नहीं डांटा। ये कहते हैं ये उनका जिल और बरूज है। मैंने आपको बताया भाई, वो नौकरानी ने गर्म पानी रख दिया, इसने लाके उसके हाथों पे डाल दिया। उस औरत की, उस बेचारी औरत की आग जला दिया। हाँ हाँ, जब जले तो उसको बताना चाहता था कि तूने गर्म पानी क्यों दिया मुझे। बस इतनी सी बात पर उस बेचारी नौकरानी की आग जला दिया उसने। हाँ हाँ, सीरतुल महदी में जालिम इंसान। इसका सारा इखलाक सीरतुल महदी में, इसकी सीरत में लिखा हुआ है।
वालेकुम अस्सलाम। आमिर नज़ीर भाई, ये जो पेंशन वगैरह चोरी की थी या बाकी ये जो हक मारते रहे वो पहली बीवी के मिर्ज़ा साहब, तो ये बहुत सारी बातें तो दावे से पहले की, वो कहते हैं कि जी दावे की बाद की ज़िंदगी बताएं, बाद में तो होते ही हैं, पहले की जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं था। बात ये है, हम दावे की तो बात ही यहाँ पर नहीं कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं कि मिर्जा साहब का इखलाक वो तो है, वो तो ज़िंदगी में, हाँ वो जो इखलाक था वो तो दावे से पहले भी ऐसा ही था। हाँ, अभी यहाँ पर कोई कादियानी था, उसके साथ ये मलक इमरान और नजफ और अली तीनों बात कर रहे थे, तो इखलाक पर बात कर रहे थे कि मिर्जा कादियानी का इखलाक बताओ, वो बता नहीं पा रहा था, उसको तो पता कोई नहीं, तो इनको ये बातें पकवा के मेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई, बाल चिट्टे हो गए। मैं कहता हूँ ये बात भाई वो उस टाइम बोला है ना कि माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, मैं कहता खिदमत करनी चाहिए तो फिर मिर्जा साहब सियालकोट क्यों भाग गए थे? वजह क्या खिदमत की, क्या इसने खिदमत की थी अपने माँ बाप, पूछो ना इससे। वो पीछे उनकी वालदा ही फौत हो गई है मिर्जा साहब की, और वो बाहर थे। जब वो कादियान से सियालकोट गया और सियालकोट से वापस कादियान नहीं आया, पीछे से माँ बीमार होके मर गई, ये आया ही तब है जब उसकी माँ मर चुकी थी। वो बंदा लेने गया और उसने कहा आज अम्मा मर गई है, अम्मा मर गई है, ये उधर से घर नहीं आया, उस वक्त आया जब उसका जनाजा तैयार था। ऐसा नेक बच्चा है। माँ की ये खिदमत की। बाप के बारे में खुद कहता है मेरा बाप मुझसे नाराज रहता था, बाप के बारे में खुद कहता है कि मेरा बाप मुझसे नाराज रहता था। मैं कितना गुनहगार आदमी हूँ, मेरा बाप इतना मुझ पर राजी गया है कि 2014 में आखिरी बार उनसे मुलाकात हुई है, रो रहे थे जब मैं आया हूं, वल्लाह। प्यार ले रहे थे मेरे मुंह का और रो रहे थे। तो मैंने कहा अगले रमजान में फिर आ जाऊंगा, मैं रमजान में आता रहता हूँ। लेकिन वो बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, तो उनको शक था कि भाई अब पता नहीं कब मुलाकात होगी नहीं होगी, बूढ़ा हूँ, पता नहीं अब दोबारा इससे मुलाकात हो नहीं हो। थोड़ी सी उनकी सेहत थी। 2007 तक, 7-8 साल पहले तक जब मैं वहाँ मौजूद था, मैंने भैंसें रखी हुई थी, कोई बंदा भी था काम शाम करने वाला, तो मैं इनको बुजुर्गों को कहता था कि आप बूढ़े हो गए, मुझे डर रहता है आपको कोई दिल का मसला ना हो जाए, तो आप वो दूध निकाला करें भैंस का, क्योंकि उससे वर्जिश हो जाती है ना बाजुओं की, मसल्स की। इसके अलावा आपने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ आप दूध दोया करें बस, ताकि आपकी वर्जिश हो जाए मसल्स की। बड़े खुश होते थे। ये कहता है मेरे से बाप हमेशा नाराज ही रहता था। अंदाजा कर लो, ना बाप इस पर राजी, ना माँ इस पर राजी। काम काज वगैरह भी कोई काम काज थे ना। अच्छा, एक बात याद आ गई अमर भाई की बात सुनते हुए मुझे, मैं इसीलिए ऊपर आया था। जी जी। अमर भाई, आपने तफसीर सुनाई पढ़ी है? कोई नहीं, अबू वफा की पढ़ी, जब जरूरत पड़ती है पढ़ लेते, सारी तो नहीं ना पढ़ी, जो जो जरूरत होती है वो देख लो। उसमें जो आयत है ना कि नबी शायर नहीं होते, ये नबी शायर नहीं है, इस आयत के तहत अबू वफा ने एक बात लिखी थी कि जो चीज नबूवत के लिए जरूरी है मिर्जा कादियानी में उसका फुकदान था, वो है ही नहीं थी। जो चीज नबूवत की जिद है वो कसरत से पाई जाती थी मिर्जा का, जो चीज नबूवत की जिद है वो कसरत से पाई जाती थी मिर्जा कादियानी में। जी जी। उनका ये कौल मुझे बड़ा पसंद है, और बड़ी उनकी तहकीक थी कि जो चीजें नबूवत की जिद है ना वो कसरत से है, इसमें नबी शायर नहीं होता, मिर्जा कादियानी शायर था। जो चीज नबी के लिए मन है कि वो उसमें नहीं होनी चाहिए, वो मिर्जा कादियानी में पाई जाती थी। जिन चीज का नबी में होना जरूरी है वो मिर्जा कादियानी में थी नहीं। दोनों मुजाद चीजें चल रही थी। उसका तो मैंने सुना है मिर्जा कादियानी ज्यादातर बीमार हुआ रहता था। भाई ज्यादातर बीमार नहीं रहता, जिस बंदे की आप देख लें कि वो कहता है कि मुझे निशान के तौर पर 2 बीमारियां दी गई हैं, उसको सेहत काफी नसीब होगी। फिर जिसका निशान ही बीमार होना हो उसकी सेहत का क्या मसला होना है, उसको सेहत कहाँ नसीब होनी है। आमिर भाई, तुसी अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे कुछ दस रहे सो, इन्हां चीज़ां नूं थोड़ा जिहा आमिर भाई थोड़ा जिहा और डिस्क्राइब करना, बड़ा मजा आ रहा सी। मैं कह रहा था कि इखलाक एक तो ये होता है, जो आपका किरदार होता है वो भी इखलाक का हिस्सा होता है। एक आपकी जो गुफ्तार है, एक किरदार है, एक गुफ्तार है।
किरदार ये है जो मैंने बयान किया। गुफ्तार का पता ही है आपको, सुनाओ हो उसकी गुफ्तार दो चार। आज़ैतनी खुब्सन फलस्त बिसादिकिन इल्लम तमुत बिल खिज़्य या इब्नुल बगा, ये गुफ्तार है। या ओ कंजरी के बच्चे, सादुल्लाह लुधियानी को कहा था, हाँ ओ ओ कंजरी के बच्चे, कर देता, हाँ ओ कंजरी के बच्चे, तूने मुझे बहुत अजियत दी है। आज़ैतनी खुब्सन, अपनी खबासत के साथ तूने मुझे बहुत अजियत दी है, बड़ी तकलीफ दी है। अगर मैं सच्चा हुआ तो तू मेरे सामने ही मर जाएगा, पता नहीं जिल्लत की मौत मारा जाएगा। आज़ैतनी खुब्सन फलस्त बिसादिकिन, मैं सच्चा नहीं हूँ। इल्लम तमुत, अगर तुम ना मरा, इल्लम तमुत बिल खिज़्य यानी जलालत के साथ, या इब्नुल बगा, ए इब्ने बगा। इब्ने बगा का मतलब होता है फाहिशा औरत के बच्चे, कंजरी के बच्चे। ये इसकी गुफ्तार थी। सादुल्लाह लुधियानवी को ये लिखा हुआ है, ए फाहिशा औरत के बच्चे, मैं सच्चा ही नहीं हूँगा अगर तू मेरे सामने जिल्लत की मौत ना मरा। हालांकि वो सिर्फ एक दिन नमूनिया हुआ, फौत हो गए। सुबह को नमूनिया हुआ, शाम को रात को फौत हो गए। ये कहता है जिल्लत की मौत मरेगा। अब बताओ, जिसको एक दिन बुखार हो, रात को जनाजा हो जाए, वो बंदे की कितनी लंबी जिल्लत की मौत होती है। इतनी तो इसकी भी हुई है। इसको रात को पेचस शुरू हुए हैं मिर्ज़ा कादियानी को, शाम के खाना खाते हुए, शाम का खाना खाते हुए पहला पेचस आया, फिर पेचस पे पेचस, पेचस पे पेचस। सुबह तक तो पानी सारा निकल गया, पेट खाली हो गया। सुबह 6:30 बजे जुबान बंद हो गई, 10:30 बजे जाके मरा है। तो आप शाम के 6 बजे से लेकर गिनने कितने घंटे बनते, इतना ही टाइम। सादुल्लाह लुधियानवी, उनको बुखार था, वो चारपाई पे नहीं गिरे, पखाना नहीं निकला, जिस्म गंदा नहीं, इसके तो पखाने निकल रहे थे, जिस्म सारा गंदा लिबड़ा हुआ पखानों में। उठ के चारपाई पर गिर रहा था और कह रहा था कि बीवी ने कहा ये क्या होने लगा? कहता है वही होने लगा जो मैंने तुम्हें बताया था, मरने लगा मैं। बहरहाल ये भी बोला था ना कि मीर साहब मुझे हैजा हो गया, क्या आपने बोला था? हाँ, मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया। आमिर भाई एक और वाकया जरा तुसा सुनाया कि अनस बिन मालिक जिहड़े ने उन्हां 10 साल एक करसा गुजारा ते मिर्ज़ा कादियानी ने एक बच्चे नूं थप्पड़ मारिया सी। मिर्ज़ा वो वाकया कादियानी के बारे में किताब का नाम नोट कर लें, ज़िक्र हबीब। मुफ्ती सादक उसका मुरीद भी है, अल बदर का एडिटर भी था, और कहता था मैं हजरत साहब की जूतियों का गुलाम हूँ। मुफ्ती सादक क्या कहता था? मैं तो हजरत की जूतियों का गुलाम हूँ। वो जो जूतियों का गुलाम था ना, उसने क्या किया, उसने किताब लिखी ज़िक्र हबीब। उसमें उसने जिक्र किया कि मिर्ज़ा साहब का एक मुरीद होता था, गुलाम हुसैन उसका नाम था। नोट कर लो, आइंदा बंदा आपके हाथों से मिस हो गया, मैंने आपको छोड़ना नहीं है। वो गुलाम हुसैन के बच्चे किसी दूसरे मुरीद के बच्चों से खेल रहे थे, कादियान वो आया हुआ था, अपना शहर छोड़ के यहाँ आ गया था। जिस तरह रबवा चले जाते हैं ना बंदे, कई गुजरात से, सियालकोट से उठ के भाई यहाँ पर तंगी है, मुसलमान मारते हैं, चलो रबवे चले जाए, ऐसे ही कादियान भी इनका बना हुआ था, दारुल मान बना हुआ था। वहाँ आ गया था वो मुरीद अपने बच्चों को लेकर। उसके बच्चों की लड़ाई होगी किसी दूसरे बच्चों के साथ। ये अंदर से निकला मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, इसने उस बच्चों को थप्पड़ मारे, थप्पड़, ज़िक्र हबीब में लिखा हुआ है। ये इखलाक था कि मासूम बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको थप्पड़ मारे। उसकी बीवी ने कहा भाई ये अच्छा इमाम मेहदी है, ये अच्छा मसीह मऊद है, छोटे छोटे बच्चों को इतना मारा है। वो बीवी अपने शोहर को लेकर चली गई, वहाँ से कादियान से बैत तोड़कर चली गई कि भाई हम आपकी बैत से निकल रहे हैं, कहीं और से जाकर रोटी खा लेंगे। कई लोग आ जाते हैं, चलो रोटी इधर से मिल जाएगी, मुरीद बनो, ऐसे ही थी वो। तो बहरहाल बच्चों के साथ जुल्म, बीवी के साथ जुल्म। कैसा इखलाक आमिर भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक साहिब थे, मफहूमन में बयान कर रहा हूँ कि वो बच्चा उनका गुम हो गया। तो किसी सहाबी को मालूम था कि फ़लाँ बच्चों के साथ खेल रहा है, तो एकदम से उनको पता चला कि वहाँ है, तो वो जाने लगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस बुलाया, तो कहते हैं कि बेटे को बेटा कह के ना बुलाना, नाम ले के बुलाना, कि वहाँ हो सकता है ऐसा भी हो जिसका वालिद ना हो, तो तुम्हारे गम में, तुम्हारे प्यार में, वो तुम इतने प्यार से उसका नाम लोगे, तो बच्चों के दिल में जिसके वालिदैन ना हो क्या गुजरेगी।
इसलिए तुम एहतियात से काम लेना और उसका नाम लेना। तो ये तो शफकत थी। और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहते हैं जनाब ज़िल्ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ बिल्लाह। और इसके अखलाक पर कितनी बातें सुनाऊं। उसने लिखा हुआ है कि जो मेरी किताबों से फ़ायदा नहीं उठाता और उनको मोहब्बत की नज़र से नहीं देखता वो कंजरियों के बच्चे हैं, कंजरियों के बच्चे। ज़ुर्रियतुल बगाया, आईना, वो क्या नाम है किताब का, आईना कमालत इस्लाम है, उसमें लिखा हुआ है 438 सफ़े पे मेरे ख्याल है। तो गंदी 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 गालियां लोगों को दी हैं। रूहानी खजाइन जिल्द 12 सफ़ा 231 की आखिरी लाइन लिखी हुई है नीचे, जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा। पूछो ये इखलाक है? ये इखलाक है कि जो गाली कोई मुखालिफ देता है, मुखालिफ आपको माँ की गाली देता है तो आप भी उसको माँ की गाली दोगे और कहता है कि मैं नबी पाक का ज़िल और बुरूज हूँ। ये इखलाक है इसका? कितनी बातें मैं सुनाऊँ इसके इखलाक की। इमाम देखे ये आमिर भाई कितना शातिर है, ये अपना नाम चेंज करके मतलब नाम अपना असल जाहिर नहीं करेंगे और आकर जो है कुरान पाक पर और कुरान पाक और मुसलमानों के काबरीन पे बातें करेंगे। तो नाम चेंज करके अपना आते हैं और मिर्जे को जो है, मिर्जे से क्यों बात करें भाई, मिर्जे की किताबों से क्यों बात करें भाई? तुम आओ मिर्जे की किताबों से बात करो, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो भाई। आप जब उनको कहते हैं ना आओ मिर्जे की किताबों से बात करो, वो डर जाता है। मिर्जा ही कहता है इसके पास, उसको ये सवाल ना डाले करनी कि नहीं करनी, डायरेक्ट मिर्जे की किताब की बात उसके आगे रख दो, रख दो उसके मुंह के आगे, दो इसका जवाब। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या बोला हुआ है, ये क्या किरदार है, ये क्या इखलाक है, ये क्या किस तरह का बंदा था। नहीं वो फिर वो गुस्सा करते हैं ना, गुस्सा करते हैं, फिर नाराज होते हैं भाई। उनकी किताब इतनी देखकर गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं ना। मैंने एक दिन वो जवाब, तो मिर्जा साहब को एक गाली समझते हैं, वो तो कहते हैं नाम ही ना लो मिर्जा का, मिर्जे का नाम ही ना लो भाई, उनको तो गाली लगती है। क्या हुआ जवाब के साथ? मैंने उससे एक दिन पूछा कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह वो किसी आदत या बीमारी की वजह से शराब पिया करते थे, तो ऐसा क्यों लिखा है? तो उसने, वो नाराज़ हो गए, उसने कहा कि समीर भाई ये इस तरह के सवालात क्यों करते हो आप, तो ये आप तो अच्छे भाई हो तो ऐसा क्यों करते हो? पता नहीं भाई ये कहने की बजाय कि आप सवाल क्यों करते हो, हम ये कहते हैं उसने लिखा क्यों ऐसा। मुझे कहो कि सवाल ना करो, उसे ना कहो कि तुमने गलत लिखा है। ये अच्छा तरीका है। कहते हैं कुरान और हदीस से की बात नहीं करते, उन चीज़ों के बारे में क्यों बात करते? कुरान और हदीस का इसलिए नाम लेते हैं ताकि ये बातें लोगों के सामने ना आए, इन पर कपड़ा डाल के, चादर डाल के छुपा के इसको रख लें कि भाई ये किरदार था, ये इखलाक था, ये गुफ्तार था, ये किरदार, ये आपके आंखों के सामने मैंने रख दिया है आधे घंटे में, इनको याद कर लें। और सवाल मैसेज नहीं पढ़े जा रहे जी। उनको ये ना कहें कि हमने मिर्जा की किताबों से बात करनी है, नहीं नहीं नहीं, बात उनके आगे रख दें। वो रोए, चीखे, चिल्लाए, नाराज हो या खुश हो, उसको कहो भाई इसका जवाब दे दो भाई, नाराज ना हो, नाराज ना हो। उसको समझाओ कि नाराज नहीं होना यार, प्यार से बात करनी है, सिर्फ बात का जवाब दो। जब आप ये कहोगे कि किताब से बात करनी है, वो कहेगा नहीं नहीं मैंने तो कुरान शरीफ, तुम मुसलमान नहीं हो, कुरान शरीफ से बात क्यों नहीं करते? तो ये ड्रामा वो करते हैं। सीधा किताब का हवाला उनके आगे रखे, मैं आया आप बात कर। आप जैसे कि ये निशान 85 है ना कि 16 दिन पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ, वो तो बोलने के काबिल भी नहीं है, वो तो उसके अच्छा, बारे में अमीर भाई मैंने एक बात कहनी थी। ये उस दिन मैं सैफी की ब्रॉड पे गया ना, तो इसने मुझे ऊपर उठा लिया जी। मैं कहा भाई अभी मैं मुनाजरा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास हवाले नहीं है ना, तो फोन गुम हो गया था। मैंने उसको एक्सप्लेन किया तो कहता है अच्छा, फिर भी ना उसने कहा कि नहीं कोई भी सवाल करें आप करें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सवाल मैंने यही किया कि ये मिर्जा साहब जो थे उनकी वफात, ये जो इनकी मौत हुई है मिर्जे की, मिर्जा साहब की, तो
वो ये जो है इनको पेचेस और वगैरह लग गए थे, ये बीमारी की वजह से जो है उनकी फौत हो गए। तो ये ले गए अपना सैफी साहब जो थे, ये माज़अल्लाह नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर जो है ना बात उठा के ले गए थे। वो 7 साल उनको जो है वो उनको भी जो है अल्लाह पाक ने जो है बीमारी में मुब्तला किया। और मैंने कहा तुम गलत बात कर रहे हो, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता 7 साल है कि 18 साल, रिवायतों में आता है 18 साल है कि 20 साल है, कहीं में 22 साल है। तो ठीक कर दिया था उनको तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। वो तो वापस हर चीज उनको जो है, सिर्फ बीमारी नहीं दी थी, हर चीज उनसे ले ली थी और वापस भी उनको कर दी। तो उनको एक इम्तिहान में मुब्तला किया था। तो कहता है कि मिर्जा साहब को भी तो ठीक हो गया था। मैंने कहा मिर्जा साहब किधर ठीक हुए? तो ये मैंने पूछना था, क्या मिर्जा साहब को भी जो है वो ठीक हो गए थे या उसी बीमारी में मुब्तला होकर जो है वो गलाजत में मरे? जी बहुत ही उम्दा सवाल किया आपने, खुदा कितना ज़बरदस्त जवाब दिया उसको कि वो तो ठीक हुए थे, फिर ये क्यों ठीक नहीं हुए थे? ये तो उसी बीमारी की वजह से आ रही है जी, इंतकाल कर गया आप था। हैं? क्या सवाल किया था, किसने सवाल किया था? वो पूछ रहे हैं जो मिर्जा साहब को बीमारी लगी थी, हैजा हुआ था, तो वो ठीक हो गया, बाद में इंतकाल हुआ उनका, या उसी बीमारी ने उनकी जान ली, हैजे ने? हैजे से मरे ना। जब पानी अंदर से खत्म हो जाता है, हैजा उल्टी और पेचिस आता है तो उसका नाम हैजा है। उल्टी और पेचिस के जरिए से आपका सारा जिस्म के अंदर जो पानी है वो खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। वो हो गई, सारा खून खुश्क हो गया, मर गया, उस हैजे से मरा। आमिर भाई, ये मिसाल जो है वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की चले जाते हैं उन पर, उनकी मिसाल देने के लिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में ना कुरान में कोई बात लिखी हुई है ना हदीस में कि उनको कोई बीमारी बुरी लगी, कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई। होता पता क्या है, क्योंकि अय्यूब अलैहिस्सलाम मसीह अलैहिस्सलाम से भी पहले, तौरात और इंजील आने से भी पहले वो नबी हो गुजरे, तो उनका जिक्र इंजील में है। अब इंजील में जो कुछ बातें लिखी हुई हैं वो इस तरह की बातें हैं कि वो हम तो मानते ही नहीं ना उसको। इंजील के अंदर जो बातें लिखी, तो हमारे लिए तो वो कोई हुज्जत नहीं है इस तरह की बातें। तो वहाँ पर इस तरह की बातें लिखी हैं, बाद हमारे मुफस्सिरीन ने वहाँ से कॉपी करके लिख दी अपनी तफसीरों में। नहीं लिखना चाहिए था उनको ऐसी बात नहीं लिखनी चाहिए थी, लेकिन अगर लिख दिया, अल्लाह उनको माफ़ करे, हमारे लिए वो हुज्जत थोड़ी है कि जो उन्होंने लिख दिया बनी इसराइली रवायात के बारे में। हमारे लिए नबी पाक की बात हुज्जत है। बुखारी में हदीस आती है कि बनी इसराइली रवायात को ना उनकी तस्दीक करो ना तकजीब करो, ना उनको सच्चा कहो ना झूठा कहो, बस जो है लिखा हुआ है, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, देख लो जाके। तो हज़रत अय्यूब के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि उनको कोई इस तरह की बीमारी लगी थी। जो किसी ने लिखा है वो उसका खुद जिम्मेदार है, हम उसके जिम्मेदार थोड़ी हैं। अगर किसी ने गलती से लिख दिया, अल्लाह उसको माफ़ करे, लेकिन अगर किसी ने झूठ खुद आमदन उसमें इंजील वगैरह में, ये तो मिर्ज़ाई भी मानते हैं कि इंजील मुहर्रफ और मुबद्दल किताब मानते हैं, तो अगर उसमें किसी ने लिख दिया तो वो जाने और वो जाने, हमारा क्या लेना देना इससे। कुरान में नहीं लिखा हुआ, हदीस में कोई बात ऐसी नहीं लिखी हुई कि हज़रत अय्यूब को माज़अल्लाह कीड़े पड़ गए थे जिस्म में, और ये सब कुछ भी नहीं, खुराफात हाँ ही कोई होंगी इसराइली रिवायात में, कुरान और हदीस में कोई ऐसा नहीं। इसीलिए ये एक मौका है, ये एक रास्ता है अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को कुरान और हदीस की तरफ खींचने की। ये एक नहर है, खुद ब खुद लोग खींचे चले आएंगे। ये जो तफसीरों में बातें लिखी हैं, मौलवियों ने बातें लिख दी हैं, ये जो ज़ाकिरीन के शियों के बयान आके करते हैं, सुन्नियों के मौलवी चढ़ के स्पीकरों पर कई बातें कर, सब से जान छूट जाएगी। सिर्फ 2 चीज़ें अल्लाह के नबी ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह। 2 चीज़ें मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, इनको पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है, एक नबी की सुन्नत, बस। बाकी सब कोई मौलवी लिखता है, कोई मुफस्सर लिखता है, कोई ज़ाकिर बयान करता है, इमाम है, मुफस्सर है, मुजद्दिद है, मुहद्दिस है, उनकी बात हमारे लिए हुज्जत नहीं है। उन्होंने कहाँ से देख कर लिखी, हम उसकी तस्दीक तरदीद नहीं कर सकते। हो सकता है सही हो सकता है ना सही हो, तो हम क्यों उसको माने। हमारे सामने पेश करना है, कुरान और हदीस को पेश करो।
अच्छा, ये समीर जो भाई आपके पास ये प्यारे प्यारे हजूर के बड़े अच्छे अच्छे फोटो हैं जी। ये जो पिक्चर आपने लगाई है ना, ये फोटो चैनिक है, ये फोटो कैमरा है, वो क्या उसको बोलते हैं, उसकी फिल्टर से बनाई गई फोटो है। इसकी ओरिजिनल अगर लगाएं, उसके चेहरे की ओरिजिनल पिक्चर, तो उसका इतना रंग साफ नहीं है, काला रंग है काफी। अच्छा आमिर भाई, प्यारे हजूर जब मेरे ख्वाब में आए ना तो यही शेरवानी पहनी हुई थी, इसी रंग की, बल्कि यही होगी शायद। ये देखिए बात क्या है कि ये इनका पहला खलीफा वो कैसा इंसान था, वो उसके बारे में आमिर भाई उसके बाद पहला इनका जो खलीफा था उसका नाम था हाँ हकीम नूरुद्दीन। जी जी वो कहता था कि मुझे अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया है, तुम्हारे माजूल करने से मैं माजूल नहीं हो सकता, तुमने मुझे मेरे हाथ पर बैत कर ली है, अब तुम ऐसे हो जाओ जैसे मैयत गुस्ल देने वालों के हाथों में होती है ना, लाश की तरह मेरे सामने जो मैं हुक्म दूं वो मानो। वो अपने आप को शहनशाह, वो क्या होता है, वो मुगलों के जो बादशाह होते थे, जिल्ले सुबहानी समझना शुरू कर दिया उसने, हकीम नूरुद्दीन ने। तो वो रहा 1908 से लेकर 1914 तक, 6 साल तक वो जिंदा रहा, यानी खलीफा जो बनाया उसकी हैसियत से 6 साल जिंदा रहा। तो 6 सालों में उसने 2 साल पहले अपनी दिखाई ये वाली बातें कि भाई जो मैं कहता हूँ उस पर अमल करना होगा, मैं खलीफा हूँ, मुझे खुदा ने खलीफा बना दिया है। 2 साल के बाद घोड़ी से गिर गया, घोड़ी से गिरा तो घोड़ी के वो सैडल में पाँव अटक गया ऊपर ना, वो सर नीचे पाँव ऊपर, रकाब में पाँव फंस गया, घोड़ी दौड़ने लगी, ये गली के अंदर घिसटता हुआ जा रहा था। तो इसके मुंह के ये देखे ना, आंख के नीचे जो हड्डी होती है ना, सामने आपको नजर आ रही ना, जो गल सी बनाई हुई है इसकी, वो हड्डी नंगी हो गई, ये गोश्त नीचे लटक गया गोश्त प्रॉपर, जिस तरह कपड़ा फट के नीचे लटक जाता है ना, वो लटक गया नीचे। तो फिर उसमें वो नसूर सा बन गया, वो ये लगाता था उस पर हल्दी वगैरह, और वो उस जमाने में तो यही होता था, कोई डॉक्टर तो इस तरह के ऑपरेशन सर्जन तो नहीं थे, तो वो लगा लगू के तो ये सही करने की कोशिश करता था, लेकिन बूढ़ा था, वो सही हो नहीं रहा था। 4 साल उसी जख्म को लेकर जिंदा रहा, और बिल आखिर उसी नासूर के साथ, उसी जख्म के साथ कब्र में चला गया। वो भी अपने आप को बड़ा समझता था कि मैं शहनशाह मुमलकत बन गया हूं, मैं भी जिल्ले सुबहानी हूं। अच्छा आमिर भाई, ये जो दूसरे खलीफा थे बशीरुद्दीन महमूद, वो चंदा सिस्टर कहती हैं उनकी वालदा उनकी खादमा थी, वो ड्यूटियां लगती थी क्योंकि उनके पास से बदबू आती थी मरने के करीब, तो वो बड़े बुरे हालात में मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद मरा। अच्छा, ये मैंने एक
عربی سنانی تھی. یہ خلیفہ صاحب نے جو ہے نا مسرور تھامس صاحب نے یہ عربی بولی ہے, ذرا سن لیں. جی سنائیے جی یعنی انا نحنو نزلنا الذکر انا نحنو انا یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہیں, یعنی انا نحنو نزلنا الذکر انا نحنو ہیں, انا یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. یعنی انا نحنو نزلنا الذکر انا نحنو انا یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہیں, یعنی انا نحنو نزلنا الذکر انا نحنو ہیں, انا یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جی یہ عربی بول رہے تھے خلیفہ تھامس صاحب. یعنی جو ہے اچھا بھائی کیا ہوا, میرے کال آ گئے تھے, کیا اپڈیٹ ہے؟ یہ بھی فیک پکچر ہے, یہ بھی اوریجنل نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ یہ والا لباس پاکستان میں نہیں پہنتا تھا, اور یہ پکچر اچھا یہ اوریجنل نہیں ہے, اوریجنل نہیں ہے, کیونکہ یہ پکچر پاکستان کی یہ ہو نہیں سکتی. پاکستان سے جب یہ آیا تو اس کی داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی, میں نے خود اس کی داڑھی دیکھی ہے, 2009 میں بھی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہوتی تھی. یہ لمبی داڑھی تو اس کی یہاں ہوئی ہے خلیفہ بننے کے بعد. اچھا انہوں نے پاکستان سے خود آیا ہے یا کہ ان کو نکال دیا گیا ہے, یا مسئلہ کیا ہے ان کا؟ نہیں, یہ پاکستان میں سے خود ہی آیا ہے, کسی نے نکالا نہیں اس کو وہاں سے, خود ہی آیا. کیس ایک تھا اس پر, وہ تو کوئی ایسا کوئی قتل کا کیس نہیں, نارمل سا مقدمہ تھا تو, لیکن یہ وہاں سے خود آیا. یہ بھی اصل نہیں ہے. عامر بھائی تلاوت کر رہے ہیں کہ یہ عربی بول رہا ہے, بیچ میں یعنی بھی کہہ رہا ہے, یہ آپ نے سنی ہے؟ سنی ہے میں نے. یہ اس بات یہ علم یہ بھی اور اس کے یہ پیروکار بھی, کوئی حال ہی نہیں ان کا. ایک سوال ان کے آگے رکھ دو, ان کی جان جا رہی ہوتی ہے. چھوٹی سی بات آگے رکھ دو, باتیں بڑی بڑھ بڑھ کے. خیر جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا, ذیل بروز آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں, بروز کیا ہوتا ہے, ذیل کیا ہوتا ہے. پھر وہ لے کے جائیں گے حیدرآباد سے جناب وہ بمبئی کی طرف, اور بمبئی سے گھوم کے اڑیسہ کی طرف, اڑیسہ سے پھر بہار سے ہوتے ہوئے کما کے واگا بارڈر پر آنا پڑے گا. تو یہ جاہل ہیں, جاہل, باتیں بڑی کرتے ہیں کہ ہم بڑے سیانے کوے بنتے ہیں. لیکن یہ لوگ زیادہ تر کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں ظلم ہوا ہے, ہمیں ہمارا گھر جلا دیے گئے, لوگ ہم پر ظلم زیادہ کرتے. دیکھیں میری بات سنیں, وہ یہ پاکستان میں کرسچن بھی رہتے ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں, گھر تو لوگوں کے نہیں جلائے جاتے, لیکن کبھی کبھار واقعہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا. وہ مسلمانوں کے گھروں کو بھی کئی دفعہ دوسرے مسلمانوں نے آگ لگا دی, کسی دوسرے. ابھی یہ جو کھاریاں پچھلے سال اس
मौसम में मैं पाकिस्तान गया हूँ, जब रमजान आया ना, पहले रोजे जिस बंदे ने 6 कत्ल कर दिए खारियां, उसके घरों को मैंने देखा गिरते हुए मिसमार के, तो वो लेंटर पड़ा हुआ, कोठी बनी हुई, तो वो पुलिस आके उसको क्रेन लेकर गिरा रही थी। वो क्यों गिरा रही थी? जुर्म किया ना, भगौड़ा था ना, बंदे मार के भाग गया, वो पुलिस को साथ लेके मदइयों ने उसके घर गिराने शुरू कर दिए। तो कभी कभी खुद मुसलमानों के घरों को भी गिराया जाता है, मिसमार किया जाता है, घरों को आग भी लगा देते हैं लोग। क्रिश्चियन के भी साथ वाकयात हुए हैं। अब वो कौन सा जड़ावाला में उनके क्रिश्चियन के जो चर्च थे उनको आग लगा दी, कुछ लड़कों ने गलत किया, लेकिन हो जाता है ऐसा वाकया, कभी कभार हो जाता है जब पुलिस वहां पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो एक्टिव नहीं होती हैं, तो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। लेकिन इसमें ये सिर्फ उनके साथ मिर्जा महमूद ने घर नहीं जलवाए थे, ये जो दूसरा खलीफा इनका, खुद इसने कादियान में लोगों के मिस्त्रियों के घरों को आग लगा दी थी। वो मिस्त्री जो इस पर जिना की तोहमत लगाते थे, इल्जाम लगाते थे, इसने उनके घर को आग लगा दी। तो जो ये लोगों के घरों के साथ करते थे कादियान में 1947 से पहले, समीर साहब सुन रहे हो? जी 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 सुन रहा हूँ। 1947 से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले जो कुछ ये करते थे कादियान में, वही कुछ इनके साथ हुआ बाद में पाकिस्तान में आके। तो रोते क्यों है? नेजाबाजी का लिबास है जी, ये नेजाबाजी वाला पुल्ला है। ਉਹ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। क्या कहा सैनी साहब ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁन्नत। उर्दू में तर्जमा कर दें कैसर मलिक भाई, वो समीर भाई नहीं समझ रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी तो ये खलीफा का क्यों ऐसे है? तो उन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक वास्ता इस्लाम से नहीं है, इसका ताल्लुक वास्ता जो पंजाब इंडिया के पास है और जो पंजाब पाकिस्तान के पास है उससे है। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अब आप देखें ना, ये जो खलीफा जो दुआ मांगता है ना, तो बड़े अजीब से हाथ जोड़ता है, सिर्फ अपने आप को डिफरेंट करने के लिए ना, कि मैं बड़ा कोई, जो आम कोई मौलवी पाकिस्तान में जिस तरह हैं लोग, उनसे बड़ा डिफरेंट हूँ। हाथ जोड़ के ना ऐसे अजीब सा मुंह बीच में दिया होता है। तो शहनशाह भाई ये कायद आजम भी इस किस्म की नहीं पहनता था? हाँ, मतलब ये वही ना, जो पंजाब है ना, पाकिस्तान में जो पंजाब है उसका कल्चर ये है, और हमारे पाकिस्तान में जो पुठवार का इलाका है ना, उसमें जो नेज़ाबाजी करते हैं उनका बिल्कुल यही लिबास होता है। वो नेज़ाबाजी करने के लिए बड़ी शेरवानी पहनते हैं, मैंने तो देखी है बड़ी नेज़ाबाजी, और ऐसा ही कुल्ला वो भी पहनते हैं, और ऐसे ही बिल्कुल वो पहन के ना, तो उसके बाद वो नेज़ाबाजी करते हैं। तो ये इस्लाम से नहीं है, इंडिया का हैदराबाद, उधर ये ज्यादातर पहना जाता है इस किस्म का लिबास। हाँ जी, ऐसे ही है। मतलब ये ज्यादातर ये लोग काले टोपी पहनते हैं ज्यादातर, पता नहीं उसका क्या मतलब होता है उसको। वो सिर्फ अपने आप को ना मुसलमानों से डिफरेंट करने के लिए। वो तो यहूदियों की होती छोटी सी। वो पंजाब की नहीं, अपना पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है ना, नेशनल असम्बली, उसमें वो जो कागज वगैरह इधर उधर ले जाते हैं ना, वो पहनते हैं वो टोपी, जो मुलाजमीन होते हैं।
मीर भाई वो जो पिक्चर जरतश्त का लगाया हुआ था पोस्टर, उसके साथ जोड़ के इसको लगा सकते हैं आप, इसको और उसको इकट्ठा? जरदश को नहीं वाला, उसको तो मैं जोड़ के अभी तो मुझे पीछे जाना होगा उसके लिए। हाँ, दोनों पिक्चर्स को दोनों पिक्चर्स को इकट्ठा किया जा सकता है ना, एक है ना एप्लीकेशन। हाँ वो कभी कर दूंगा, फिर अभी तो नहीं कर सकता, अभी तो मैं इधर हूँ। क्यों ये अच्छी नहीं लगती आप लोगों को ये वाली? हमें तो नफरत है इनकी इन तस्वीर से और इनकी शक्लों से। ये ड्रामेबाज लोग हैं, अल्लाह इनको नाबूद करे। इन्होंने इस्लाम पर जो डाका डाला है, ये कोई मोहब्बत करने के लायक लोग नहीं हैं, सख्त नफरत के लायक लोग हैं। यानी एक तो कहते हैं ना चोरी ऊपर से सीना जोरी, एक तो इस्लाम का हुलिया बिगाड़ के एक नया मज़हब बना दिया अपना, ऊपर से उसको इस्लाम कहते हैं और ऊपर से हमें आंखें दिखाते कहते हैं हमें काफिर कहते हो। कोई माँ ने लाल जना ही नहीं जो हमें काफिर कहे, हमें उम्मत से निकाले। अच्छा वो सब ने निकाल दिया, वो मुतमिन है कि ये हमारा हिस्सा ही नहीं है, तो ये कहते हैं कोई माँ ने लाल जना ही नहीं जो हमें उम्मत से निकाले। कौन हो तुम जो हमें निकालते हो पाकिस्तान से और हमारी नबी पाक की उम्मत से? भाई नबी पाक की उम्मत से सारी उम्मत ने आपको निकाल दिया। नहीं कोई निकाल ही नहीं सकता हमें। आंखें दिखाते हैं आगे से, गालियां देते हैं। इनकी बराडों के नीचे से गुजर जाओ। मैंने वो सारी रिकॉर्डिंग की है जितनी आपकी कल गुफ्तगू हुई है। कितना वो मिसबिहेव आपके साथ कर रहे थे, कहो तो मैं सुना भी सकता हूँ। फिर आपको जब नीचे उतार के भी जो बकबक कर रहे थे और नीचे कमेंटों में भी बुरा भला आपको बोल रहे थे कि ये है ही मुनाफिक, इसको खाम खा अपने सर पे चढ़ाया हुआ है, ये कुत्ता है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये जितनी वो बातें कर रहे थे उनसे उनकी सोच का पता चलता है कि उनके अंदर कितनी नफरत है मुसलमानों के बारे में। भले कोई शिया है, भले कोई सुन्नी है, सबसे वो नफरत करते हैं। तो हमें भी उनसे कोई लगाव नहीं, हमें भी देख कर नफरत ही होती है, घिन आती है इनकी शक्लों को देख कर। जी सही बोला आप बिल्कुल। ये लोग बहुत जालिम लोग हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते ये लोग, नहीं सबको काफिर करते हैं, सबको। ये जब आपसे हम कलाम होते हैं ना तो ये फौरन अपने जहन में एक खाका बनाते हैं और वो ये बनाते हैं कि ये लोग ना अबू जहल है और हम लोग बिल्कुल सही हैं। यह देखा अक्सर ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं अबू जहल, ठीक है ना, फ़िरौन, ऐसे अल्फाज अपनी बातों में यूज़ करें। ये ट्रेनिंग ऐसे की गई है ना कि तुम लोग बहुत ही कोई ख़ास बंदे हो, बाकी सारे फारग है, अबू जहल हैं ये। हालांकि मिर्जे को खुद ही नमरूद से मिला देते हैं। ये पहला हमला ये करते हैं कि भाई आप मुशरिकीन मक्का में से कोई आपको नाम दे देंगे कि अबू जहल को भी नहीं समझ आती थी बातें नबी पाक की, तो वो आपको अबू जहल बना देंगे, खुद नबी पाक के साहबा बन के और नबी पाक बन के आपसे मुखातब होंगे। तो इस तरह का ज़हन गंदा और इस तरह का मतलब ये लोग कहते हैं ना कि जितने भी फिरके, जितने भी लोग हैं इस्लाम में, 72 फिरके सारे जहन्नुमी है, सिर्फ हम ही है जो जन्नती और बाकी तुम लोग गलत हो, दोज़खी हो। आगे से गाली गलौज, इतना गंदी गंदी गालियाँ देते। फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम कुछ दिन गाली दी हम लोग आप लोगों के सामने, इमाम जाफर सादिक को मेरे सामने गाली दी। तो आगे से ये लोग इतना जुल्म करते, फिर अगर जवाब में कोई बंदा इनको गाली गलौज करे, फिर ये लोग इनकी शिकायत निकलती है कि लो जी। बल्कि कल तो मैं वो जरतश्त को सुन रहा था, वो तो कह रहा था मैं फिर दूंगा, वो तो ये कह रहा था। तो यानी उसको कोई शर्म या नहीं है, वो तो कह रहा था कि मैं दोबारा फिर भी करूंगा ये काम, करना जो करना है कर लो। कितनी बार कर लेगा बिल आकर। जिस तरह नासिर भट्ट की फोटो बाहर आई है और नासिर भट्ट की पिक्चर हमारे पास है, उसके बाप की पिक्चर हमारे पास है, इसी तरह इसकी भी पिक्चर इसके माँ बाप की आ जाएगी, वो भी लटका देंगे इसके खलीफा के साथ, इसके काबर के साथ। वो समीर ने ये लिख कर लगाया हुआ है ना कि अगर कल तक इस मिर्ज़ाई ने माफ़ी ना मांगी, इसके बाद जो भी इसके काबरीन की तौहीन होगी उसका गुनाह इस पर है।
हाँ बिल्कुल, रात क्योंकि को ये तो कुरान मजीद भी फरमा रहे जज़ाओ सय्यातुम मिसलुहा। अगर आप किसी काबिर के मतलब कुछ कहेंगे तो वो उसका भी हक है कि वो फिर आपका जवाब दे। ये लेकिन तो सारे का ये ये लोग है ना, क्योंकि पहल तो और उसने की है ना। हाँ, और आप लोग तो जानते हो कि मेरा इन लोगों के साथ कितना नेक रवैया था हाँ, ना। मैं तो हैरान था। और मैं उस वक्त ही, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि आप जैसे बहुत सारे लोग आए जो मिर्जाइयों के साथ उनको मौका देते हैं कि अपनी बात आप बयान करें, और जितने भी लोग ऐसे हैं उन सब को मिर्जाइयों ने ही फिर इतना उनको तंग किया, दलील किया, क्योंकि ये मिर्जाई समझते हैं कि जिस ब्रॉड पे हमें आने की किसी ने कहा है ना, वहां पे हमारी हुकूमत होनी चाहिए। ये वहां पे इंसाफ नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि बस हमारी हुकूमत हो। समीर साहब अगर अच्छे बंदे हैं, वो मौका दे रहे हैं, तो फिर मिर्जाइयों की हर बात वो माने, वरना फिर ये आपके करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर देंगे। पहले आप देख लें कितने लोगों ने कोशिश की। अफजाल वड़ाइद साहब, नो वर्ड, उसने बड़े प्यार मोहब्बत उसने कहा कि कोई बात नहीं, इंसान ही है, इनकी भी बात सुन लें, हम अपनी इनको समझा दें। उसको भी इन्होंने दलील कर दिया। हर बंदे के साथ यही काम करते हैं, जो भी थोड़ा सा भी इनको मौका देता है। रात को वो बनी इसराइल सनी साहब की बरात पे बैठा, तो उसका वो हाँ क्वेश्चन था, उसने सवाल किया तो इन्होंने उसके साथ वो बुरा सलूक किया, उसे वो गालम गलोच की उसको। और उसको अब उससे पूछे, हाँ भाई तुम्हारे अकाबर कौन है? वो कहते जी मेरे अकाबर तो सिर्फ कुरान पाक है। इन्होंने अल्लाह माफी दे कुरान पाक को गालियां देना शुरू कर दी। अस्तगफुर। नहीं, मैं तो वो हैरान होता हूँ, वकास जो बनी इसराइल है वो तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है, लिटरेरी गुफ्तगू करता है, हाँ और उसके पास उसके दलील होती है भी। उसका एक अपना अकीदा है, वो हर शख्स को अपना अकीदा रखने का हक है, लेकिन वो बात हमेशा दलील से करता है। आप दलील से उसको जवाब दें। ओ जाहिलो, ओ ये कहना नहीं शुरू नहीं, कर दो वो अगले ये समझ रहे थे कि इसको आमिर नजीर ने पर्ची दे के भेजा है। को। वो कस्में चुक रहा है, कहना जी मुझे मेरी तो आमिर नजीर साहब से ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। नहीं, हमें पता है तुम्हें, फिर आमिर नजीर नहीं, साहब को उसको गालियां कस्म दी। उठाने की जरूरत ही नहीं थी उसको, को जो तुम इल्जाम लगा रहे हो, ये तो सबसे बड़ी बदबख्ती बदजन्नी है कि ना कोई तुम्हारे पास सबूत है। कुछ ऐसे ही कह देना तो फलाने ने भेजा, फलाने ने भेजा है। यानी लोग आमिर नदीर के नौकर हैं कि वो उसकी बात पे ले लेके फिर रहे हैं। भी कैसी बेगुनाह आमिर नदीर ने किसी को कहा है कि तुम मेरी चीजें ले लेके लोगों की तरफ जाओ? भी हर शख्स सुन रहा है, मिर्जाइयत को सुन रहा है, आपकी अकायद सुन रहा है, और उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके मुताबिक है कि जो जो आप पेश करते हैं उसमें दलील कोई है नहीं है, बेबुनियाद अकीदा है सारे का सारा। और अकल देखें कि वो अदरीस के जो बंदा नहीं वहां बैठा है, SMI नाम की आईडी। अच्छा, वो उसके साथ मेरी बात हो रही तो वो मुझे, हम हंस रहे हैं आपस में, सारे हंस रहे हैं। वो मैंने कहना है मिर्जा साहब गैर शरई नबी हैं। तो मैंने कहा ये मैं भी मानता हूँ। मैंने कहा ये तो मैं भी मानता हूँ भाई। वो कहता है फिर कलमा पढ़ रहे हैं, नारे मार रहे हैं। मैं कहा यार देखो इन्हों की हालत चेक करो। उससे पहले वो कह रहे हैं कि आप लोग जो उनसे ना वो कुरान शरीफ के बारे में आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को हम सिखाएंगे। ये हालात देखें इनके, खुद पता कुछ नहीं सिखाना है इन्होंने। इन लोगों बेचारों के हालात। बड़ी बदबख्त कौम है ये, क्या करें। कौम, अजीब कौम पैदा कर दी है। इनकी असल में वो ट्रेनिंग करके गया है वो मिर्जा ताहिर। एक वो तलत मलक बैठा है, वो जनाब डोले की तरह करे इधर निकल जाता है, कदे उधर, कदे कुरानी बन जाता है, कदे सरकारी बन जाता है, कदे मुसलमान बन जाता है। वो समीर बेचारा हैरान हो रहा था कि मिर्जा साहब ने कभी हज नहीं किया। तो सीरतुल महदी में उन्होंने लिखा हुआ है मिर्जा साहब ने कभी हज नहीं दिया, हज नहीं किया, कभी ज़कात नहीं दी, कभी एतकाफ में बैठे, कभी तस्बीह नहीं रखी। ये सारी बातें सीरतुल महदी में लिखी हुई हैं। तो मिर्जा साहब ने कोई हज नहीं किया, नमाज भी नहीं पढ़ाई, कोई इमामत नहीं करवाई उन्होंने कभी भी। नहीं, इमामत उन्होंने कराई है। वो जब वो गए थे चिल्ला पे तो वहाँ पे जुमा की नमाज भी पढ़ाई। और ये भी लिखा हुआ है घर में वो ख़वातीन की इमामत किया करते थे, अपने घरेलू ख़वातीन की। और एक आध दफ़ा उन्होंने इमामत का भी लिखा हुआ है कि जब कोई नहीं था इमाम जिसकी ड्यूटी थी वो नहीं आया तो फिर उन्होंने एक नमाज पढ़ाई, तो वो फिर उसका भी लिखा हुआ है। लेकिन बहरहाल वो आमतौर पे नमाज नहीं थे पढ़ाते, इसमें तो कोई शक नहीं।
अच्छा, क्या मिर्जा साहब पान भी खाया करते थे? नहीं, पान, हाँ, पान भी खाते थे। पान वो पान तो बीवी ने लगा दिया ना पान पे, मिर्जा साहब को पान की कहाँ हो, पंजाब में कौन पहले पान, नहीं थी उनको। वो जो बीवी दिल्ली से आई थी ना वो पान खाती थी, तो वहां से मिर्जा साहब भी हाँ, उनका पानदान उनका जहेज के साथ ही आया था। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सीरतुल मेहदी में मेहदी की सीरत लिखी हुई है ना, जी, उसमें से भाई एक भी चीज हमें मुज़िर नहीं है, हमारे फायदे में है वो सारी सीरत मेहदी की। हाँ, वो जितनी कैसे? सीरत, बल्कि मिर्जाइयों को पढ़ के सुनाए सीरत मेहदी, कहते हैं इससे तो मिर्जा साहब शरीफ आदमी नहीं साबित होते। फिर तुम ही नहीं लिखा हुआ, हमने तो नहीं लिखा ये सारी बात। वो सीरतुल मेहदी खोल के एक साइड से पढ़नी शुरू कर दो तो मिर्जाइयों की दौड़े देख दो, खुद लिखी यानी हुई। लिखा हुआ है मिर्जा साहब को दौरे पड़ते थे और चीखे मारते थे वो, और एक दफा उनकी हालत हुई कि चीखे मार के बेहोश हो गए, और फिर उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मेरे सामने कोई काली सी चीज थी, वो आसमान की तरफ गई है, तो जिससे मैं डर गया। यानी अजीब कहानियां लिखी हुई है। साबित कर दिया ना उन्होंने साबित कर दिया कि वो कोई बाहर की चीज इनको तंग करती थी। वही ना, काली सी कोई चीज जिन चिमड़िया सी। जिन ना हो, कोई शक रह गया? तो ये जो बंदा ये बयान कर दे जो अभी आपने वाकया बयान कर दिया, पीछे क्या रह जाता है? मिर्जा साहब की बचपन की सादगी का एक वाकया है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀਬ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਮੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਕਰਮਾ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਣਾ पे ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਤੋਬਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਿਲਾਫਤ ਚਲਾਓ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ नहीं। और भी बहुत सारी इस तरह गद्दियां बनी हैं। अच्छा, मिर्जा साहब का वाकया लिखा हुआ है कि वो जिद कर रहे थे बचपन में कुछ खाना खाने की, तो उनकी वालदा ने कहा कि सुहा खा, मतलब है सुहागा, ये जो राख होती है। तो मिर्जा साहब रोटी के ऊपर सुहागा राख डाल के खाने लगे। वो ये बयान करो बचपन की उनकी, तो कहते हैं जनाब कितने सादा तबीयत थे। हाँ, वो सादा तबीयत है ना कि औरत वो कहते हैं फर्मा बरदार देखो कितने हैं। माँ ने कहा है कि राख से खा ले, तो उसने राख से खा ली। और सादगी का एक और भी बयान है ना कि वो बैठे हुए, औरत नंगी नहा रही, उनको पता ही नहीं, इतने सादा थे कि वो नंगी नहा के। ਹਬੀਬ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਿਲ पे करता, जो ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, मैं कहना इनकी नस्ल बट भी नहीं कर सकता। नहीं, ये इन्होंने लिखा हुआ है ना सारा कुछ, जिक्र हबीब में लिखा हुआ है। तो सुबह मैं आपको ना पता की मैं कहता ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰਦੂਦ ਤੇ ਨਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲਿਖਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪ। ਬਰਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰਦੂਦ ਤੇ ਨਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੇ ਦਰੂਦ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ? हाँ बिल्कुल, नहीं जो जी हरकत फिर करनगे मिर्जाई, वैसे ही फिर उन्होंने सलूक होएगा। हाँ, चार पांच बंदे तैयार बंदे तैयार किए। हाँ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਪਰ ਬੈਤ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਗੱਲ ਇਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਢਹਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 3-4 ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ? ਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੋ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਕਾਲਮਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵਰਿਆਮ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ 3-4 ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਨੀ ਜ਼ਕੀ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਖਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਾਤਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਬੀਰ ਇਹਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕੀ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮੂਰ ਮਿਨੱਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਰਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਨਾ। ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਆ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਇਹਦੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਆਉਣਗੇ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਹਿਦ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਤਰਤ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸਸੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, रूहानी मुराद है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, जिस्मानी मुराद है। आमिर भाई, आप वो सुन रहे हैं तलत मलक की बराड़ और बनी इसराइल की जो आपके ऊपर इल्जाम आ गया कि आपने पर्ची दे के भेजा बनी इसराइल को? हकीकतुल वही दा तीजा पेज ला के बनी इसराइल चढ़िया है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਹੀ करता है। अभी वही बहस चल रही है ना, तो वो कह रहे हैं कि वो कर रहा है बात इस वक्त कर रहा है। हाँ कर रहा है वो कर रहा है। उसने हकीकतुल वही का तीसरा पेज लगाया है। शैतान भी सच्ची वही करता है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ मगर। नहीं एक मिनट बात, कल फिर एहतजाज होगा, आज के लिए इतना ही इजाजत दे दें, फिर इंशाल्लाह कल आपके एहतजाज में शरीक होंगे। थोड़ा सा यार आमिर भाई यार स्क्रॉल भी थोड़ी सी दिखा देना यार। नहीं आमिर भाई ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? मैं चेक करने लगा शागिर्द ने कोई परफॉर्मेंस दिखाई है कि छड़ी पर्ची लेके चलो सारियां आमिर नज़ीर दी दकीन। आमिर नज़ीर साहब मसला सिर्फ है कि वो मलक दी बराड़ है, वो मैनू ते वो चुकदे नाल ही थल्ले सुट देंदा है पहले, क्योंकि वो बनी इसराइल ने कहा तारक चौहान नू चुको, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਆमिर अच्छा भाई आ ਨਾਲ जाओ ਜਾਓ। अपना की नाम आमिर भाई आ जाओ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲਾਓ ਜਰਾ ਥੋੜਾ। करना, लेकिन एक किया ना, चलो ठीक। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਡੀਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਕਾਪ ਬੈਡ ਕਾਪ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਝੂਠੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਗਾਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਮੀਲ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆमिर नज़ीर साहब जी ठीक है, बेहतर है, ठीक है समीर भाई, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है।
मेरा पास्टर नहीं बोल रहा आज। पास्टर भाई क्या हो गया? जान बी 3340। पास्टर भाई का मूड स्विंग हो गया है आज लगता है। हमारी सिस्टर कहती है मेरे ख्याल से के बारे में है। आज तो इरफान भाई भी हमको कमेंट दे के चले गए। कहता मैं इनको बड़ा शरीफ आदमी समझता था, जब मैंने इनकी पोस्ट देखी उसके बाद पता चला ये शरीफ आदमी नहीं। यार मैंने कौन सा खुद इसके ऊपर नाचा हूँ। बाइबल नाच रही है। किसको? मुझे कौन मुझे कह रहे हैं या किसी और को? जी भाई ये हमारी बहन कहती मैं भी इनको अनफॉलो कर रही हूँ। किसको? हमको? कोई बात नहीं। ये क्या पास्टर भाई? अच्छा पास्टर भाई को। पास्टर भाई तो वो कहते ठंड में आए हैं काम से, अभी वो मसरूफ होंगे। जाहिर सी बात है काम से अभी वापस आए ना। नहीं भाई भी ठंडे इलाके में रहते हैं काफी पास्टर भाई, वहाँ ठंड होती है। हाँ साइप्रस। आई वाज सरप्राइज। मैं समझ रहा था कि शायद कि मिडिल ईस्ट में रहते हैं, दिन में गर्मी रात को सर्दी। साइप्रस भी दो है ना, भाई ने बताया नहीं कौन से साइप्रस में? दो साइप्रस हैं। The Cyprus which is near to Turkey, an island. मैं इधर हूँ जो है ना यूरोप वाले में। हाँ दो साइप्रस है, एक यूरोप का एक तुर्की का। अच्छा हमारे पास एक साथी आए थे कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 4-5 साल पहले मेरी मुलाकात हुई। तो कहते मैं साइप्रस में रहा काफ़ी अर्सा और अभी यहाँ पे आ गया हूँ, मैंने शादी कर ली है। तो फिर उनको रहना पड़ा बड़े सख्त हालात में, यानी कि इन अ माउंटेन एरिया, क्योंकि उनकी वाइफ जो ताल्लुक था उनका